स्टार्ट किया था? just started. एटॉमिक रेडियस स्टार्ट किया था। हाँ, एटॉमिक रेडियस मैंने स्टार्ट किया था। मुझे जितना याद है मैंने आपको एटॉमिक रेडियस मेजरमेंट के डिफिकल्टीज बताए थे। हाँ मैम, है ना? I had told you what are the difficulties in measuring atomic radius. तो फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। What are the difficulties in measuring atomic radius? क्या डिफिकल्टी है एटॉमिक रेडियस मेजर करने की? सबसे पहला डिफिकल्टी ये है कि एटम डज नॉट हैव अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। ओके, यस मैम, the probability of finding the electron is never zero, even at a large distance from nucleus. So if we say atomic radius is from the center of the nucleus till where the last electron is present, but we cannot pinpoint that position where the last electron is present, यस मैम, and that's the reason we cannot precisely measure atomic radius. दूसरा reason और जो quite important है कि we cannot isolate a single atom. It is not possible to get an isolated atom जिसके around और कोई atom ना हो. Okay, ये almost impossible है. तो इसका मतलब है हमेशा हम जब भी atomic radius measure करते हैं तो उसके around में भी उसके जैसा ही कोई atom है या कोई दूसरा atom है, दूसरे element का atom है. And when around a particular atom another atom is there, तो क्या हो जाता है? Due to the presence of neighboring atom, the electron cloud will be always affected, as electrons of one atom can be attracted towards the nucleus of another. An electron of one atom can be repelled by the electrons of another. So when there are two atoms or more atoms together, their electronic cloud is affected by the presence of each other. Is this point clear to everybody? yes, तो एटम अकेला हम आइसोलेट नहीं कर सकते. द मोमेंट उसके अराउंड दूसरे एटम्स आ जाते हैं तो उससे उसका इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड क्या हो जाता है? अफेक्ट हो जाता है. Its electronic cloud gets affected. yes मैम, And then you know what happens? The size of the atom, इसका मतलब क्या है? कि जो size of the atom होगी, maybe in presence of a particular atom, it will be something else. And the minute I change the neighboring atom, maybe the size will change. yes मैम, Right? This is another problem. कि आप कौन से नेबर के विसिनिटी में एटॉमिक साइज मेजर कर रहे हो, एटॉमिक रेडियस मेजर कर रहे हो. नेबर्स बदल गए तो एटॉमिक रेडियस बदलते जा सकता है. एंड देन द थर्ड मैम क्या आप रिपीट कर सकते हो जो आपने बोला अभी? वापस से मैंने ये बोला बेटा कि इट इज इम्पॉसिबल टू गेट एन आइसोलेटेड एटम. द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द एटम is affected by presence of neighboring atoms. यस मैम. And that means if neighboring atoms will change, okay, the electron density will change, and in turn the measurement of atomic radius will change. यस मैम. And is the problem, that is the size of the atom changes in going from one set of environment to another set. जैसे ही एटम का एनवायरनमेंट चेंज होगा उसकी साइज भी चेंज होगी. ये प्रॉब्लम है. yes मैम, राइट? yes मैम, देन द लास्ट पॉइंट, ये सब मैंने लिखवाया था शायद आपको पता. मुझे have you write down all this? yes मैम, लिखवाया आपने. डिफिकल्टी है ना, डिफिकल्टी लास्ट पार्ट मुझे याद है मैंने डिफिकल्टी डिस्कस जरूर किए थे आपके साथ, बट क्योंकि अभी एक वीक का गैप हो गया तो आज का लेक्चर के इनफ्लो आने के लिए मैं रिपीट कर रही हूँ ताकि फ्रेश हो जाए माइंड में कि क्या डिफिकल्टी है. तभी तो जाके समझ में आएगा कैसे मेजर करेंगे. मैम हमारा जो टेस्ट है वो आज के लेक्चर तक ही होगा. हाँ बेटा, और टेस्ट का इतना स्ट्रेस प्लीज बिल्कुल मत लेना, है ना. टेस्ट में बेटा वही पूछा जाएगा जो सिखाया है. I have no interest to ask the
something that I haven't taught. जो मैंने सिखाया है वही ठीक से करो, बस उसी में अच्छा करो. कुछ भी नहीं पूछूंगी कभी भी किसी भी टेस्ट में जो नहीं सिखाऊंगी. एकदम रिलैक्स रहना. Will never ask you anything that I haven't taught. Okay, जितना सिखाया है बस वो रिवाइज करते रहना. उसका जो भी काम दिया है वो करते रहना. उतना अगर रेगुलरली कर रहे हो, you are definitely going to do good in your exam. Just don't worry about it. Take exam as something, you know, a regular thing. वो आते रहेंगे और हमको उसको लेके काम करना. ये भी ना करो कि एग्जाम है मतलब उसी के टॉपिक लेके बैठो और जो बाकी काम चल रहा है वो ठप कर दो. उसको एक रेगुलर पैटर्न में लाओ, एक रिदम में लाओ कि हफ्ते में 1-2 एग्जाम तो हमको देने ही है. इतने सीजन हो जाओ. Okay, so I was talking about difficulties in measuring radius. So देखो, what is the third difficulty? The atomic size of an atom is very small and it is of the order of 10 raised to minus 10 -10. meters, right? Yes, ma'am. To measure something this tiny is again difficult. Yes, ma'am. And then that's the reason. How are we going to estimate the size of the atom? I told you that we are going to measure bond length. Did I told you this last lecture? Yes, ma'am. आपने बोला था कि कोई दो एटम के बीच में वो एटम रहेगा उसको मैं बाद में आज समझाऊंगी कैसे बॉन्ड लेंथ मेजर करना है, वो आराम से आज समझाऊंगी. बट अभी हम क्या करने वाले हैं? एस्टिमेट द साइज ऑफ द एटम बाय मेजरिंग बॉन्ड लेंथ्स. Okay, so we are going to estimate and we are going to learn how to estimate the size of the atom by measuring bond length. अब ये बॉन्ड लेंथ कैसे मेजर करते हैं ये मैं आज आपको डिस्कस करूंगी. बट मैं एटॉमिक रेडियस मेजर नहीं कर पा रही हूँ. इसके रीजन मैंने बता दिए. अब ये जो बॉन्ड लेंथ मैंने यहाँ पे लिखा है, ये बॉन्ड लेंथ भी मेजर करना कुछ आसान नहीं है. इट्स नॉट इजी. सो वी नीड सम हाईली सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट्स. ओके, टू मेजर बॉन्ड लेंथ we need some highly sophisticated instruments like X-ray diffraction technique, infrared spectroscopy, nuclear magnetic resonance spectroscopy. So the next thing that you have to understand is bond lengths can be measured by X-ray diffraction technique. तो इस एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक को इन शॉर्ट XRD कहते हैं या इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी. This is called as IR, infrared spectroscopy. या न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी. इसको कहते हैं NMR. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये भी कोई ऑर्डिनरी इंस्ट्रूमेंट्स नहीं है. ये हाईली सोफिस्टिकेटेड लैब में होते हैं. You won't find in our college lab or in any ordinary lab. Okay, the institutes like TIFR or IIT or research institutes have them. And again, measuring a bond length in this itself is a tedious thing. But yes, bond length can be measured by using this kind of instrument.
अभी बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या है? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मेजर अ बॉन्ड लेंथ? द मिनिमम रिक्वायरमेंट टू मेजर अ बॉन्ड लेंथ विल बी टू एटम शुड बी बॉन्डेड. बॉन्ड होना जरूरी है. यस मैम. और बॉन्ड एक टाइप का नहीं होता हाँ मैम. है ना. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग पॉसिबल. तो बॉन्ड लेंथ मेजर करने के लिए ओके बॉन्डिंग होना जरूरी है. And bond length will change with different types of bonding. तो bond length measurement का problem क्या है? Bond length will change with different types of bonding. Different types of bonding के साथ bond length बदल जाती है. And then based on that, okay, based on the nature of bonding, I'm going to discuss with you three kinds of radius. तो bond length से हम radius calculate करेंगे और ये तीन टाइप की हो जाएगी based on what is the bond present. So there are Okay, ma'am. three types of radius that we are going to see. तो पहले टाइप का रेडियस है कोवैलेंट रेडियस. Okay, so I will show you how we are going to measure this covalent radius. दूसरा रेडियस है इसको मेटालिक या क्रिस्टल रेडियस कहते हैं. And the third type of radius is van der Waals radius. So based on the nature of bonding, the radius will be of three types. तीन टाइप के रेडियस हम सीखेंगे. And I start teaching you what is a covalent radius. Okay, and from a bond length, how I am going to calculate covalent radius. So we start the discussion of the first type of radius called covalent radius. So what is a covalent radius? Covalent radius का definition is half of the distance between the two nuclei of two like atoms bonded together by a single covalent bond. So I'm writing this and I'll explain you this.
So I'll show you diagrammatically what this is. So I'm drawing two like atoms now. Like मतलब दोनों atom same है. एक हाइड्रोजन है तो दूसरा हाइड्रोजन ही है. This is one atom and this is another atom. और कोवैलेंट बॉन्ड में जब भी हम कोवैलेंट बॉन्डिंग सीखेंगे, there is a overlap between two atoms. तो ये दो like atoms है और ये जो मैंने डॉट्स बनाए हैं ये इनके न्यूक्लियस है. So this is how two like atoms will look when they are covalently bonded. Now I told you about these instruments, X-ray diffraction, infrared या nuclear magnetic resonance spectroscopy. इससे हम क्या मेजर करते हैं? इससे हम distance between the two nucleus we can measure. तो ये क्या मैम? हम ये जो टचिंग दिखा रहे हैं ना, ये इनके इलेक्ट्रॉन्स क्लाउड टच करते हैं. तो अभी एक्सरे डिफ्रैक्शन से ये वाला डिस्टेंस, ये दो न्यूक्लियस के बीच में जो डिस्टेंस है, जो मैंने लाइन ड्रॉ करके बताया है, दिस इज द डिस्टेंस दैट वी आर गोइंग टू मेजर एंड दिस डिस्टेंस इज बॉन्ड लेंथ. तो जब भी हम केमिकल बॉन्डिंग में बॉन्ड लेंथ की डेफिनेशन करेंगे, व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ बॉन्ड लेंथ? Bond length is nothing but distance between the two nuclei of bonded atom. So I call bond length as distance AA. तो ये डायग्राम में bond length क्या है? Your bond length is distance between A and another A. और ये मेजर होगी एक्सरे डिफ्रैक्शन या इंफ्रारेड या एनएमआर से. और फिर कोवैलेंट रेडियस क्या होगी? जो भी ये बॉन्ड लेंथ है, ओके, दिस डिस्टेंस AA, ओके, इज कंसीडर्ड एज रेडियस ऑफ A प्लस रेडियस ऑफ A, या दिस इज नथिंग बट 2RA. And therefore I will say the radius of A is distance AA upon 2. So covalent radius is defined as half of the distance between the two nuclei of two like atoms bonded together by single covalent bond. So did you understood how we can calculate it? Yes, ma'am. मैम हाँ बोलो बेटा. मैम वो तो उसको ओवरलैप कर रहा है ना, तो डिस्टेंस 2R से कम होना चाहिए. वो जो ओवरलैप कर रहा है, क्या बोल रहे हो? मैम जो डिस्टेंस बिटवीन दो न्यूक्लियस है मैम, उसमें तो मैम एक एटम और दूसरा एटम पे ओवरलैप हो रहा है. तो मैम हो रहा है ना बेटा. तो बीच का बट डिस्टेंस अगर दो दोनों बार ऐड एटम होगा. लाइक है ना, तो वो ओवरलैप जोन को हम निग्लेक्ट कर देते हैं. एंड दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. सो दिस टेल्स यू कि हाउ मच इज द एरर इन द मेजरमेंट. ओके. Am I able to still precisely measure? नो मैम. I'm around it. Getting it? हाँ, This is एक what we are एग्जांपल doing. करके दिखा सकते हो? क्या? एक एग्जांपल इस बहुत सारे एग्जाम्पल दे रही हूँ. होल्ड ऑन. एक क्या, बहुत सारे करेंगे. होल्ड ऑन. तो आई जस्ट टोल्ड यू हाउ डू वी डू इट. नाउ एक्सरे डिफ्रैक्शन से बॉन्ड लेंथ इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल. That is distance HH is found out to be 0.74 angstrom. So therefore, covalent radius I will denote it by R and C is 0.74 upon 2.
and that is 0.37 Armstrong. तो हाइड्रोजन की जो कोवैलेंट रेडियस है that is 0.37 Armstrong. Similarly, covalent radius for chlorine is distance CLCl upon 2. ये distance CLCl है 1.98 Armstrong divided by 2, so it becomes 0.99 Armstrong. और कैसे मेजर किया है ये मैंने आपको बता दिया है. मैम तो वो लोग ने वो जो मतलब बॉन्ड लेंथ दिया रहेगा ना मोस्टली, तो कौन देगा बॉन्ड लेंथ? तुमको ये कभी कैलकुलेट नहीं करना है बेटा, इसके क्वेश्चन बहुत अलग है. ओके अच्छा. देखो कोई ये नंबर नहीं पूछने वाला, ये फॉर एग्जांपल दे रही हूँ. क्वेश्चन में खुद तेरे को ये नहीं पूछेंगे कि भाई ये बॉन्ड लेंथ है और रेडियस निकाल, तू क्या कर रहा है डिवाइड बाय 2, ऐसा थोड़ी ना आईटी में पूछेंगे. नहीं. इसमें क्या बड़ी बात है? तो क्वेश्चन के बारे में बाद में सोचना, पहले कंसेप्ट समझना. यस मैम. यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम. इतना कॉपी करो. देन आई विल डिस्कस जब भी दो एटम अलग है तभी क्या करना है. क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा थोड़ी ना दो लाइक एटम्स में होता है, अनलाइक एटम भी होंगे. तो क्या होता है? मिस मिस चलो आगे बढ़े. मैम 2 मिनट. हाँ आराम से बेटा, कोई घाई नहीं. टेल मी व्हेन यू आर रेडी. डन मैम. So see, when both the atoms are same, ऐसे मॉलिक्यूल को कहते हैं homonuclear diatomic molecule. So this was the diagrammatic representation of homonuclear diatomic molecule. इसका मतलब है दोनों एटम सेम है. Now I will show you a heteronuclear diatomic molecule. मतलब एक एटम A है तो दूसरा B है, दोनों सेम नहीं है. ओके मैम. ये A है और ये B है. एक H है तो दूसरा Cl है, दोनों सेम नहीं है. This is what is your heteronuclear diatomic molecule. तो अभी देखो इसमें क्या करना है. इसमें you understand
इट विल बी वेरी रॉन्ग कि जो मैं डिस्टेंस है वो करूं और दोनों की रेडियस को सेम बताऊं। नो मैम। हाँ या ना बोलो। यस मैम। तो इसमें क्या करते हैं, what it is here I have to consider distance AB as radius of A plus radius of B, क्योंकि दोनों सेम नहीं होंगे। हाँ मैम। अगर दो में से एक की रेडियस पता है तो दूसरे की समझेगी, दोनों अननोन है तो मैं कैलकुलेट नहीं कर सकती, ये सबसे पहला पॉइंट। तो ये डिस्टेंस ए बी जो होगा ये मुझे मशीन से पता चलेगा, XRD, IRN, anything same that I have explained you earlier. But now see what changes here. This distance AB is radius of A plus radius of B. यहां तक तो आपको समझ में आ रहा है। अभी इससे हम एक फैक्टर माइनस करते हैं इधर, और वो फैक्टर है 0.09 delta chi. I am explaining you what is the whole meaning of this. So I am writing here minus 0.09 del chi. Now ये del chi क्या है? Chi obviously is a Greek alphabet that we are using, okay, to represent electronegativity. ये कौन सा फैक्टर हम माइनस कर रहे हैं? ये फैक्टर, ओके, ये ओवरलैप्ड जोन जो है, जब ये दो अलग एटम अट्रैक्ट होते हैं तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड का अट्रैक्शन है वो अलग हो जाता है, ओके, एज कंपेयर टू व्हेन टू एटम्स आर सेम। ये जो डिफरेंस है ये आपको केमिकल बॉन्डिंग के बाद में पता चलेगा कि H और H के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है और H और Cl के बीच में कोवैलेंट बॉन्ड है, उसमें फर्क है। एक नॉन पोलर हो जाता है, दूसरा पोलर हो जाता है, दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में डिफरेंस आ जाता है। ये सब अभी उतना समझना डिफिकल्ट है क्योंकि ना मैंने अब तक आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाई है ना बॉन्डिंग, बट अंडरस्टैंड करो कि दो अलग एटम आने के बाद ये ओवरलैप फैक्टर निग्लेक्ट करना बहुत ज्यादा एरर वाली बात है। हाँ मैम। बड़ा एरर करेंगे अगर हम इसको निग्लेक्ट करेंगे तो Yes. इसको निग्लेक्ट नहीं करते, इसको कंसीडर करते हैं। ओके और मैम। इसको कंसीडर करने का जो फैक्टर है वो 0.09 डेल काय है। अब ये 0.09 डेल काय क्या है? इट इज अ डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी। अगर ए क्लोरीन है और बी हाइड्रोजन है तो इन दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो डिफरेंस है वो डेल काय है। मैम काय को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं। हाँ बेटा, एक्स ही है, इट्स नॉट एक्स, थोड़ा सा अलग। एक्स ऐसे होता है, ये एक्स है, कॉर्नर्स में लंबा तो थोड़ा। काय थोड़ा ऐसे होता है, थोड़ा सा फर्क है, नॉट मच। ओके मैम। ओके, तो ये ग्रीक अल्फाबेट्स में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है, बट इसको एक्स नहीं कहते, इसको काय कहते हैं। सो सी आई एम एक्सप्लेनिंग यू ईच एंड एवरी टर्म दैट कम्स इन दिस फॉर्मूला। ये फॉर्मूला में मैंने जो भी लिखा है मैं फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ। तो ये वाला फैक्टर जो है ना, ये वो जो ओवरलैप्ड जोन का कंपनसेशन फैक्टर है, जो अभी हम दो अलग एटम्स होंगे तो निग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी इसमें क्या क्या टर्म्स आए? डिस्टेंस ए बी आया, तो ये डिस्टेंस ए बी क्या है? बॉन्ड लेंथ बिटवीन ए एंड बी, ये तो सबको पता है ना। हाँ तो इस मैम। फॉर्मूला में डी ए बी मैंने लिखा है, ये इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी है। फिर आर ए क्या है? व्हाट इज आर ए? आर ए इज कोवैलेंट रेडियस ऑफ ए।
How do I know about covalent radius of A? It will be distance AA upon 2. What is RB? RB is covalent radius of B, which will be distance BB upon 2. और ये Yes, दोनों ma'am. चीजें मैंने आपको समझा दी है. अभी व्हाट इज डेल काई मैं यहाँ पे लिखती हूँ क्योंकि और नीचे लिखूंगी तो शायद नहीं दिखेगा. सो आई विल स्टार्ट राइटिंग ऑन राइट हैंड साइड ऑफ द बोर्ड. आई एम क्लियरिंग दिस पार्ट. आप कैमरा का एंगल थोड़ा चेंज कर सकते हो क्या? बोर्ड का लास्ट पार्ट नहीं दिख रहा. दिख नहीं रहा है कुछ कि दिख रहा है? नहीं दिख रहा है. क्या नहीं दिख रहा है बेटा बोलो. मैम राइट हैंड साइड का मैम पार्ट. राइट हैंड साइड का पार्ट नहीं दिख लिखो पहले लिख लो राइट हैंड साइड फिर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाती हूँ. यस मैम. दिख रहा है ना अभी? हाँ मैम हाँ, दिख मैम. रहा है. ये खत्म करो फिर मैं शिफ्ट करती हूँ कैमरा. मैम हो गया. हो गया ना. ग्रेट. अभी काय वाला पार्ट समझते हैं. ओके अभी ये डेल क्या काय क्या है. इट इज द डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन ए एंड बी. यही चैप्टर में पीरियोडिक में मैं आपको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सिखाने वाली हूँ. कैसे मेजर करेंगे सब कुछ. तो तभी आपको क्लियरली पता चलेगा हाउ वी विल गेट डेल काय. But I'm just writing right now. It is difference in electronegativity between A and B. और फिर वो 0.09 क्या है. ये 0.09 जो है ये एक कांस्टेंट फैक्टर है इन यूनिट एंगस्ट्रॉम. इसका मतलब ये जो मैंने फॉर्मूला दिया है ये कभी वैलिड है जब भी सारे डिस्टेंस और रेडियस एंगस्ट्रॉम में मेजर होंगे. अभी पिकोमीटर में है एंगस्ट्रॉम में नहीं है तो क्या फर्क आएगा फॉर्मूला में वो भी बता दी हूँ. अगर आपका 0.009 AB पिकोमीटर में है रेडियस ऑफ A पिकोमीटर में है रेडियस ऑफ B पिकोमीटर में है तो ये फैक्टर एंगस्ट्रॉम से पिकोमीटर में 0.09 से 9 डेल काय बन जाएगा. एंड दिस इज व्हाट इज द चेंज इन फॉर्मूला if you are measuring it in picometer. Everybody understand this? The conversion that I did. Yes, as 1 ma'am. angstrom is 10 raised to 2 picometer. Yes or no? Yes, miss.
दोनों मतलब जैसे यूनिट चेंज होगा वो कांस्टेंट फैक्टर के डेसिमल्स अकॉर्डिंगली शिफ्ट करने हैं। समझ में आया? नहीं मैम, एक और बार बताओ ना। ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, पिकोमीटर वाला? आया मैम। ये कैसे है बेटा? आपका 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है? आपका 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻10 मीटर होता है। यस 1 पिकोमीटर क्या है? 10⁻12 मीटर्स है। Yes, ma'am. तो 1 एंगस्ट्रॉम इज 10⁻2 पिकोमीटर। हाँ मैम। तो 0.09 एंगस्ट्रॉम इज 9 पिकोमीटर। Yes, ma'am. वही किया मैंने। हाँ मैम। है ना? तो वो फैक्टर के डेसिमल चेंज हो जाएंगे अगर मेजरमेंट का यूनिट चेंज हो गया। तो बस इतना ही बोला मैंने। तो इस कोवेलेंट रेडियस क्लियर टू एवरीबॉडी? यस मैम। तो ऑब्वियसली ये फॉर्मूला अगर यूज करना है, ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, तो आपको ये दो में से एक रेडियस पता होनी जरूरी है और डेल काय पता होना जरूरी है। यस मैम। है ना? तभी वहां से आंसर आएगा। So Okay, what ma'am. will be most preferred? You will try to measure a covalent radius by taking two like atoms. हाँ मैम। है ना? वही करते हैं यूजुअली। इसके लिए डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है देखो, half of the distance between the nuclei of two like atoms, that is what is preferred. But I have to tell you what happens when the atoms are not same. ठीक है? अभी देखो, क्या सारे एटम्स जो आप देखते हो, सारे एलिमेंट जो आप देखते हो पीरियोडिक टेबल में, कैन दे फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड ओनली? नो मैम। नहीं ना, अलग अलग बॉन्डिंग अलग अलग पॉसिबल है। बॉन्डिंग होती है। सपोज मेरे पास मेटल्स है, एल्यूमिनियम मेटल है, उसका मेटल का ब्लॉक है मेरे पास, सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, तो ये कोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म कर सकते। यस मैम। So then Nickel to bond. measure their radius, okay, I cannot use this. हाँ I मैम। need to use something हाँ else, मैम। and that something else is metallic or crystal radius. So the second Okay, ma'am. discussion that I'm doing with you is of metallic or crystal radius. तो किसी भी मेटल का सॉलिड स्टेट में अपना एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर होता है। You know that in solid state atoms are very close to each other यस मैम। and they are arranged in a particular pattern but very compact, very much close to each other होते हैं। हाँ तो मैम। मेटल के स्ट्रक्चर में अगर सपोज आई एम मेजरिंग a metallic radius, say for potassium, then what is the whole meaning of metallic radius of potassium? जो पोटेशियम मेटल का सॉलिड स्टेट है, उसमें जो डिस्टेंस बिटवीन द टू पोटेशियम एटम्स न्यूक्लियाई इज देयर will be its bond length, और उस डिस्टेंस का मुझे हाफ करना है, and that will be the metallic or the crystal radius for potassium. So how do I define? It is half the distance between the nuclei of two adjacent metal atoms in a metallic close packing structure. जो मेटल का क्लोज पैक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है, उसमें जो दो मेटल एटम्स के बीच में डिस्टेंस है, हाफ ऑफ दैट। यस मैम। So half of the internuclear distance separating two adjacent metal atoms in metallic lattice is the definition. I'm writing it here.
ये इसका डेफिनेशन हो गया। मैम हाँ बोलो। मैम वो अपने लास्ट वर्ड कौन सा लिखा है? हाँ मैम क्या है वो? मेटालिक लैटिस। लैटिस का मतलब है सॉलिड स्टेट में जो एटम्स की अरेंजमेंट होती है, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज कॉल्ड लैटिस। क्योंकि ये ओके मैम। स्ट्रक्चर 3D होंगे ना, हाँ किसी मैम। भी सॉलिड का स्ट्रक्चर 3D होता है। 3D मतलब there will be a particular atom surrounded by atoms in all the direction होता है ना एक्चुअली। हाँ तो उस मैम। अरेंजमेंट को लैटिस कहते हैं। ओके मैम। तो ये कैसे होगा, मैं अभी डायग्रामेटिकली डिफरेंस बताती हूँ। तो मेटल के 2 एटम्स जो होंगे, अगर ये एक एटम है तो यहाँ पे कोई ओवरलैप नहीं होता, बस कॉम्पैक्टली दूसरा एटम उसके बगल में होगा। तो आप कोवैलेंट बॉन्ड और मेटालिक बॉन्ड में फर्क देख रहे हो? हाँ मैम। मैम ओवरलैप नहीं है। हाँ बोलो। मेटालिक बॉन्ड में ज्यादा प्रिसाइज कैलकुलेशन होगा ना रेडियस का। हाँ जो भी आप बोलो, बट दिस इज व्हाट इट इज। तो ये दो मेटल के एटम्स है, नेबरिंग एटम्स है इन 3 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। और फिर ये दोनों के, सो व्हाट इज द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस? ऑब्वियसली दिस, ये डिस्टेंस में मेजर कर रही हूँ between one metal and another metal with the help of machines. And how do I define metallic radius? What is my radius of the metal? This is the distance mm, which I'll get with the machine. Divide by 2. So I have a data for potassium. In solid state, distance between the 2 potassium atom is 4.62 angstrom. तो जैसे कुछ मेटल्स होते हैं वो कोवैलेंट बॉन्ड भी फॉर्म करते हैं, आपको पता है कि नहीं? हाँ मैम। तो अगर मेरे पास एक मेटल की कोवैलेंट रेडियस है और उसी मेटल की मेटालिक रेडियस है, क्या वो दोनों सेम होंगे? नो नो मैम। नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है? हाँ मैम। यस मुझे बता, सेम मेटल की कोवैलेंट रेडियस और मेटालिक रेडियस में छोटी कौन सी होगी, बड़ी कौन सी होगी? मैम छोटी मेटालिक रेडियस बड़ी होगी और छोटी ये होगी कोवेलेंट रेडियस। कोवैलेंट रेडियस क्या होगी? छोटी होगी। छोटी होनी चाहिए, है ना? एवरीबॉडी इज अंडरस्टैंडिंग? हाँ Since we मैम। are measuring for the same element,
Covalent radius and metallic radius, it can't be same. First is understand this, it can't be same. Okay, ma'am. And second most point is, I will say by definition, covalent radius is smaller than metallic radius. Yes, ma'am. Right? I go ahead and teach you the third radius now. And this third radius is called as van der Waals radius. Ma'am, हाँ बोलो बेटा. मैम ये एटॉमिक रेडियस का इन सिग्निफिकेंस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस का सिग्निफिकेंस क्या होता है मैम? सिग्निफिकेंस क्या होता है? क्यों कर रही हूँ एटॉमिक रेडियस? क्योंकि मुझे आपको साइज ऑफ एटम सिखाना है. यस मैम. तो जिसका रेडियस बिगर उसकी साइज बिगर, हाँ मैम. वही सिखा रही हूँ. ओके. बोलो. हाँ. मैम आप मेटालिक लैटिस फिर से समझा सकते हैं? मेटालिक लैटिस इज एनी लैटिस. मेटालिक लैटिस नहीं, लैटिस का मतलब है 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. थैंक यू मैम. तो किसी भी सॉलिड का जो कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर होता है उसमें एटम्स को 3 डायमेंशनली प्लेस्ड होते हैं. उस 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट को हम लैटिस कहते हैं, क्रिस्टल लैटिस टू बी स्पेसिफिक. We will be having a topic called solid state. ये 12th में आता है. solid state physics में भी आता है, solid state chemistry में भी आएगा, जिसमें हम इसी पे काम करेंगे. 3D अरेंजमेंट्स के पैटर्न्स पढ़ेंगे आगे चल के. मैम वो पीएम क्या होता है ऊपर? पिकोमीटर बेटा. ओके मैम. ये तो किया होगा ना आपने एटॉमिक स्ट्रक्चर में, कन्वर्जेंस, एंगस्ट्रॉम, पिकोमीटर, कितने प्रॉब्लम किए होंगे वहां पे. हाँ मैम. So now I am defining you a third type of radius called van der Waals radius. तो जिनमें कोवैलेंट मेटालिक दोनों बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, या जिनमें बॉन्डिंग ही पॉसिबल नहीं है, से इनर्ट गैसेस, उनका क्या करें? तो उनके लिए जो मेजरमेंट हम करते हैं is van der Waals radius. So what is the definition of van der Waals radius? Van der Waals radius is defined as half the distance between the nuclei of 2 non-bonded neighboring atoms of 2 adjacent molecules in solid state. So I write this definition, I draw this, and I will explain you. ध्यान दो. मीन्स राइट वाला नहीं दिख रहा. हाँ मैं शिफ्ट करके, मैं अभी वही पूछ रही थी. अभी दिख रहा है बेटा? दिख रहा यस है? मैम. यस मैम.
now Ma'am, see, I will try to explain you this, ध्यान दो. मैम एक बार प्रोनाउंसिएशन बता दो ना. मैंने आपको क्लोरीन की कोवैलेंट रेडियस मेजर करके बताई थी. अभी मैं क्लोरीन की ही आपको वैन डर वाल्स रेडियस समझा रही हूँ. बोर्ड पे ध्यान दो. So I need two adjacent chlorine molecules in solid state. So this is one chlorine molecule. और ये एक क्लोरीन मॉलिक्यूल का ये बॉन्ड लेंथ हो गया, और इस बॉन्ड लेंथ का ये जो डिस्टेंस होगा, हाफ ऑफ इट is already defined to you as covalent radius. Yes, ma'am. है ना. तो अगर ये क्लोरीन मॉलिक्यूल है तो ये डिस्टेंस ऑलरेडी taught to you, defined to you as covalent radius. हाँ अभी मैम. वैन डर वाल्स रेडियस क्या है? वैन डर वाल्स रेडियस के लिए मुझे सॉलिड स्टेट में तो क्लोरीन गैस को मुझे क्या करना है? सॉलिडिफाई करना है. Okay, chlorine gas को I am solidifying chlorine gas. So you understand कि when they are in gaseous state, the molecules are very far away from each other. Yes, Liquid ma'am. state they will be More closer. closer, and solid state they will be quite Very closer. close. Compact. हाँ, but एकदम compact नहीं, क्योंकि ये gas के molecules है. हाँ मैम. But compared to its gaseous state, it will be closer. So I'm just showing you two chlorine molecules. ये दोनों chlorine molecules ही है, और जिनको मैंने solid state में convert किया है. तो अभी वैन डर वाल्स रेडियस क्या है? What is a van der Waals radius? Van der Waals radius is defined as half of the distance between the two adjacent atoms. तो ये दो एडजेसेंट एटम के बीच का डिस्टेंस मेजर किया जाएगा, और उसका हाफ ऑफ द डिस्टेंस. तो ये जो डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये रेडियस वैन डर वाल है. ओके. मतलब दो जो पूरे मॉलिक्यूल्स रहते हैं मैम, जो बॉन्डेड रहते हैं, उनके बीच में वाला. दो अलग मॉलिक्यूल्स बॉन्डेड है, बट उनके दो नेबरिंग एटम्स के बीच का डिस्टेंस. सी, half of the distance between the nuclei of two non-bonded neighboring atoms. Are they bonded? No. No, ma'am. Of two non-bonded neighboring atoms of two adjacent molecules in solid state. Okay. Ma'am, both are in solid state. Yeah, obviously. पॉसिबल है क्या कि बाजू बाजू में दो मॉलिक्यूल रखे, एक सॉलिड है और दूसरा गैसियस है? कंडीशन में का फर्क होता है. अगर मुझे क्लोरीन गैस को सॉलिडिफाई करना है ना, आई शुड बी अराउंड -100 और मच लोअर देन दैट. और क्लोरीन गैस गैसियस स्टेट में रूम टेम्परेचर पे होता है. पॉसिबल है कि एक मॉलिक्यूल को गैसियस स्टेट में मेंटेन करूं और दूसरा सॉलिड? मैम एक और बार समझाओ ना. हाँ बेटा, तो ये दोनों मॉलिक्यूल क्लोरीन के ही है, ये समझ रहा है? यस मैम. जो मैं डिस्टेंस मेजर कर रही हूँ वो दोनों के एटम्स के बीच में है, जो बॉन्डेड नहीं है. तो बॉन्डेड का जो डिस्टेंस है वो कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ हो गई, और नॉन बॉन्डेड का जो डिस्टेंस है वो वैन डर वाल्स की बॉन्ड लेंथ हो गई. यही फर्क है. ओके मैम. मैम, हाँ बोलो. मैम जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं उनका कैसे होगा? आयोनिक बॉन्ड नहीं ही कंसीडर कर रहा है बेटा. अच्छा. मैंने तीन ही रेडियस डिफाइन किए. तो जो आयनिक बॉन्ड फॉर्म करते हैं उनकी हम मेटालिक पढ़ सकते हैं. हाँ. क्योंकि आयनिक बॉन्ड से मेजर करेंगे ना तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा एरर आ जाएगी. वो बहुत पावरफुल इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है, उससे एक्चुअल रेडियस से हम बहुत फार अवे हो जाएंगे. इसके लिए वो कंसीडर नहीं होता. आयोनिक रेडियस है ही नहीं. आयंस की रेडियस है, वो क्या है मैं सिखाऊंगी.
But radius are of three kinds: covalent, metallic and van der Waals. Are they clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अभी देखो, मैं आपको क्लोरीन का डेटा देती हूँ, तो मेरे पास क्लोरीन का डेटा है. अगर मैं सॉलिड स्टेट में I measure this distance between two adjacent chlorine atoms of two chlorine molecules in solid state. ये 3.6 एंगस्ट्रॉम है. और इससे फिर क्लोरीन की वैन डर वाल्स जो रेडियस हो जाएगी वो 1.8 एंगस्ट्रॉम हो जाएगी. So I'm giving you this example. तो मुझे बताओ, अभी क्लोरीन की वैन डर वाल्स रेडियस और क्लोरीन की कोवालेंट रेडियस सेम है क्या? No, ma'am. कौन सी ज्यादा है? Van der Waals. और किसी भी एटम के लिए वही ज्यादा रहेगी बाय डेफिनेशन, सेम तो कभी नहीं होगी. हाँ मैम. मैम वापस रिपीट कर सकते हो? Yeah, I'm just asking you to compare a van der Waals radius of chlorine and covalent radius of chlorine. Are they going to be same? No, ma'am. What will be more? What will be less? Van der Waal will be greater. Yes, van der Waals has to be greater than covalent radius. ये डायग्राम ही दिखा रहा है आपको, Yes, ma'am. है ना. इस डायग्राम में मैंने कोवालेंट रेडियस भी दिखाई है और वैन डर वाल्स भी दिखाई है. So I don't think so anyone has a doubt in this. So your van der Waals radius of an element is always larger than its covalent radius. So अगर मुझे तीनों रेडियस में कंपेयर करना है, तो which radius is largest? Van der Waals. मैम वो दिख नहीं रहा आपने मैम क्या लिखा नीचे है. का नहीं दिख रहा. नीचे कुछ नहीं लिखा है, देखो. हाँ मैम. वही जो बोला, van der Waals radius is always larger than covalent. मैम लिख लिया. मैम 1 मिनट.
So I say and give you the comparison of the radius. So your largest is going to be Van der Waals radius. And then is going to be metallic radius. Ma'am, And smallest is going to be covalent radius. Did you understood this? yes, ma'am. हेलो मैम. बोलो ना बेटा. मैम अगर जो नॉन मेटल्स रहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं तो उसके लिए भी मेटेलिक रेडियस पॉसिबल है? नॉन मेटल्स रहते हैं जो सॉलिड फॉर्म में रहते हैं जिनका क्रिस्टल बनता है उन सब के लिए पॉसिबल. हाँ. जिनका क्रिस्टल बनेगा वो सबके लिए पॉसिबल है. मेटालिक रेडियस इज क्रिस्टल रेडियस. मैम. तो कहीं पे भी किसी का सिर्फ रेडियस दिया है और हम उसको कंपेयर कर रहे हैं तो वो मीनिंगलेस होता है. वी मस्ट नो विच रेडियस इज गिवन एंड व्हाट वी आर कंपेयरिंग. अगर आप किसी एक एटम का कोवैलेंट रेडियस ले रहे हो और दूसरे का वैन डर वाल्स ले रहे हो और उसको कंपेयर कर रहे हो, ये बड़ा है ये छोटा है, तो ये कंपैरिजन मीनिंगलेस है. आर यू क्लियर? यस मैम. तो ये जो मैंने रेडियस का आपको वेरिएशन दिया, ये रेडियस में वेरिएशन क्यों आता है? क्योंकि ये जो बॉन्डिंग्स है वो अलग है. कोवैलेंट बॉन्डिंग में जो फोर्स है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है मेटालिक बॉन्डिंग के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. और इन दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्गर है वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से. हाँ मैम. तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कंपैरेटिवली इज अ वीकर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. तो अगर मुझे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कंपेयर करना है तो सबसे मिनिमम सबसे वीक हो जाएगा वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. यस. उसके बाद में मेटालिक फोर्स, इसके बारे में अभी ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वी विल लर्न मोर इन डिटेल इन केमिकल बॉन्डिंग. तो इसी पे चलेगा, यही समझाऊंगी केमिकल बॉन्डिंग में. बट यहाँ तक समझ में आया? यस मैम. So I just explained you how to measure atomic radii. क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी मुझे आपको समझाना है पीरियोडिक टेबल में variation of atomic radii. What happens to atomic radii? As I'm moving left to right in a period and top to bottom in a group. So first I discuss variation in a period.
मैम What happens as we move left to right in a period? radius decreases. The radius decreases. Okay, as we move from left to right in a period, there is a regular decrease in atomic radius for representative elements. Yes, ma'am. What is the reason? The reason is Z effective goes on increasing. आपका effective nuclear charge बढ़ते जाता है. So when I taught you effective nuclear charge last lecture, मैंने पूरा working करके आपको बता दिया है, proof किया है कि in a period left to right, Z effective increases. Just check the data of last lecture. ऐसे हाँ, इसके ma'am. लिए हो रहा है. This is due to the fact that the number of energy shells remains same in a period, but हाँ, the ma'am. nuclear charge increases gradually as the atomic number increases, and the increase of force of attraction towards the nucleus brings contraction in size. So I can say, I'm saying in short बता रही हूँ, इसका whole मतलब क्या है? तुम्हारी atomic size जो होती है वो inversely proportional to Z effective है. अगर Z effective ज्यादा है तो atomic size या atomic radius small होगी. अगर Z effective कम है तो atomic radius ज्यादा होगी. And Z effective I've discussed with you in last lecture. Is that clear? Yes, ma'am. मैम पर नोबल गैसेस के लिए नहीं होगा ना, मतलब क्या बोल रहे हो? मैम नोबल गैसेस का मतलब एटॉमिक रेडियस ज्यादा होता है ना, मतलब क्लोरीन और सुनाई नहीं दे रहा है. मैम नोबल गैसेस का रेडियस ज्यादा होता है ना, क्या कहते हैं इससे हाँ, तो हैलोजन नोबल गैसेस का अभी लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नोबल गैसेस का रेडियस ज्यादा क्यों आएगा? क्योंकि उसका वैंडरवाल रेडियस ही रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. हाँ मैम. तो उसका जो रेडियस आपको प्रिंटेड दिखता है, अगर आप किसी भी बुक में डेटा देखोगे क्लोरीन और अर्गन, तो क्लोरीन का जो रेडियस लिखा होता है वो कोवालेंट होता है, और जो नोबल गैस का लिखा होता है वो वैंडरवाल होता है. हाँ मैम. तो वो ज्यादा ही होगा. ओके मैम. तो वैंडरवाल रेडियस हम इनर्ट गैस की लिखते हैं क्योंकि वो कोई भी बॉन्ड फॉर्म नहीं करते. ओके. बाकी जो बॉन्ड फॉर्म करते हैं, देखो क्यों वैंडरवाल्स रेडियस हम सबकी नहीं लिख रहे, क्योंकि आपको खुद को समझ रहा है कि वैंडरवाल्स रेडियस इज नो वे क्लोज टू रियल रेडियस. Yes, ma'am. Yes, yes. So we will try to represent, for majority of the atoms, that data which is close to real radius and which just can't be van der Waals. तो जो कर रहे हैं उनके लिए हम मेटालिक या कोवालेंट रेडियस ही लिखते हैं. बस वैन डर वाल्स उसके लिए लिखते हैं
जिनके लिए इम्पॉसिबल है कि कोवैलेंट या मेटालिक रेडियस मेजर कर पाए। यस मैम। तो जीरो ग्रुप जो है आपके इनर्ट गैसेस का, दे डू नॉट फॉर्म केमिकल बॉन्ड। यस मैम। नहीं पोछा करके आओ। हाँ पोछा करके आओ, मैं फिर करता हूँ। जाओ। Someone's audio is on, please switch it off. तो जब भी लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाओगे, अगर मैं लिथियम से स्टार्ट करूंगी तो लिथियम से फ्लोरीन तक रेडियस छोटा होते जाता है। आपने डेटा भी देखा होगा स्कूल के बुक में, गूगल कर लो, कहीं पे भी मिल जाएगा। बट फ्लोरीन और नियॉन देखते हैं तो नियॉन बड़ा है फ्लोरीन से, ऐसे क्यों का एक्सप्लेनेशन मिल गया। Is everybody clear till here? Yes, ma'am. So this is what is variation in a period I discussed. Now I'm discussing variation in a group. And I'm discussing atomic radii. मैम जीरो ग्रुप मतलब 18th ग्रुप ना? हाँ बेटा, ग्रुप 18 ग्रुप 8 है, उसको जीरो ग्रुप भी कहते हैं। इनर्ट गैसेस का ग्रुप। मैम। हाँ बोलो। मैम वैंडर वाल एक साइंटिस्ट है क्या? हाँ बेटा। Who discovered these kind of weaker forces of interaction? So why the atomic radius is increasing as we move down the group? Due to the increase in extra energy shells.
तो न्यूक्लियर चार्ज अगर देखा आपने तो वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और ये एक्स्ट्रा एनर्जी शेल जो बढ़ रही है, that dominates. Okay. And that's the reason for representative elements. So I have to write here for representative elements. This is what happens. मैम फॉर रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का मतलब क्या, समझा नहीं। बेटा रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स मैंने बता दिए थे तुमको। यस तो उनके लिए ये वैलिड है, बाकी एलिमेंट्स के लिए क्या होता है, आई एम अबाउट टू डिस्कस। ये ट्रांजिशन के लिए नहीं वैलिड है। ओके मैम। वहां पे कुछ और होगा। यस मैम। सारे पूरे पीरियोडिक टेबल में टॉप टू बॉटम एटॉमिक रेडियस नहीं बढ़ता। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में बढ़ता है। अल्कली मेटल में लिथियम से लेके इफ आई एम गोइंग डाउन टिल सीजियम और फ्रांशियम, यस एटॉमिक रेडियस इज इंक्रीजिंग। In halogens, I am going down from fluorine to astatine. Atomic radius is increasing. So I am discussing representative elements with you right now. What is the whole reason? Okay, the shells are increasing and nuclear charge is not so much increasing. It's almost constant. So the effect of increase in shells is dominating over the nuclear charge. And that's the reason what you get is increase in atomic size as we go down the group. मैम थोड़ा रिपीट कर सकते एक बार आप? The increase in size is due to extra shells. Okay. हाँ, extra. Which overweighs the effect of increased nuclear charge. Yes मैम, समझ गया। तो अगर मैं ये दोनों चीजें जो मैंने आपको बताई उसमें मैं ग्राफिकली आपको रिप्रेजेंट करके दिखाती हूँ। यहाँ पे मैं ले रही हूँ एटॉमिक नंबर, यहाँ पे मैं ले रही हूँ एटॉमिक रेडियाई। So say second period, I am going from lithium to fluorine. What do I see? This way. Yes मैम, decreasing. यहाँ पे तुम्हारा लिथियम होगा, यहाँ पे तुम्हारा फ्लोरीन है, बीच के एलिमेंट्स आएंगे। स्टेडी ग्रेजुअल डिक्रीज इन एटॉमिक साइज as I am moving from left to right in a period of representative element. And same अगर मुझे अल्कली मेटल के लिए प्लॉट करना है, ग्रुप 1A, तो लिथियम से सोडियम से पोटेशियम, ओके, से सीजियम से रुबेडियम, ऐसे बढ़ते जाता है वो, दिस वे। मैम थोड़ा लेफ्ट में करो ना। ये इनर ग्रुप है। समझ में आया यहाँ तक? इतना कॉपी करो। Then I discuss with you variation of atomic radii separately for transition elements.
हो गया? मैम बस 1 सेकंड. मैम हो गया. हाँ मैम हो गया मैम. हो गया क्या? हाँ मैम. चलो ध्यान दो अभी मोस्ट इम्पोर्टेंट. We discuss variation of atomic radii for transition elements.
So we have seen what are transition elements, right? And we have also seen the electronic configuration of transition element. We know कि transition elements में जो last electron है वो last shell में नहीं जाता, हाँ मैम, but पेनल्टीमेट चला शेल, जाता है ना? हाँ मैम। तो मैं फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ फ्रॉम स्कैंडियम 21 to zinc 30. Talking about first transition series, what happens to atomic size? तो क्या होना चाहिए atomic size में? This is I'm moving in a period from left to right, है ना? हाँ मैम, तो साइज डिक्रीज होनी चाहिए। हाँ, तो इसमें जो साइज डिक्रीज होती है ना वो हाँ मैम, स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक डिक्रीज होती है, ओके, फिर वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और फिर वो थोड़ा एंड में इंक्रीज होती है। समथिंग लाइक दिस काइंड ऑफ अ वेरिएशन वी गेट in transition series. This is first transition series. स्कैंडियम इधर है, क्रोमियम इधर है, ये कॉपर है और ये जिंक है। So if I compare, okay, scandium and zinc, yes, atomic size is decreasing from scandium to zinc, यस मैम, but there is a difference. It is not slow and gradual as you see in representative elements. यस मैम, ओके अभी ये ऐसा एग्जैक्टली क्यों होता है? क्यों स्कैंडियम से क्रोमियम देयर इज अ डिक्रीज, व्हाई इट इज कांस्टेंट एंड व्हाई देयर इज अ इंक्रीज? आई विल डिस्कस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। हमको डी ब्लॉक एलिमेंट्स अलग से पढ़ने, एक एक एलिमेंट का वेरिएशन कभी डिस्कस करेंगे। अभी इतना समझ लो कि जो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में स्टेडी एंड ग्रेजुअल डिक्रीज है वो ट्रांजिशन में नहीं मिल पाता। का रीजन इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज नॉट एंटरिंग इन द लास्ट शेल बट इन पेनल्टीमेट शेल। ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में फर्क है उससे ये फर्क आ जाता है एटॉमिक साइज के वेरिएशन में। हाँ मैम, Ultimately from scandium to zinc that we reach, if I check this and this, there is a decrease. यस मैम, तो ये समझ में आया आपको? हाँ मैम, यस मैम। अब ये इतना लिख लो क्योंकि मैम बहुत आपने ज्यादा रेड कलर से क्या लिखा है? क्या फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज लिखा, ये ग्राफ फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज का है। नहीं दिख रहा है क्या बेटा? मैं अच्छे से लिखती हूँ। हम ऊपर लिख दो ना, कुछ ड्रॉ करना है बेटा मुझे, इसके लिए नीचे लिख रही हूँ। ओके अभी मैम, ग्राफ पढ़ेगा। Need to draw something in that space.
मैम वो कांस्टेंट क्यों है, फिर से समझा सकते हो? मैंने समझाया ही नहीं है, मैंने कहा मैं डी ब्लॉक में समझाऊंगी। मैंने समझाया ही नहीं है कि डी ब्लॉक में पहले डिक्रीज बाद में कांस्टेंट फिर इंक्रीज क्यों होता है। बस तो मैंने कौन सिर्फ इतना बोला है कि देयर इज अ डिफरेंस। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में स्लो एंड ग्रेजुअल डिक्रीज है, जो ट्रांजिशन में नहीं है, इतना बस समझना है। वो क्यों ऐसा है, क्यों स्कैंडियम से क्रोमियम डिक्रीज है, क्यों स्टेडी है, क्यों इंक्रीज है, we are going to study later in inorganic chemistry, not now. But yes, there is a difference. हो गया मैम। Okay, अभी ध्यान दो। अभी मैं टॉप टू बॉटम इनर ग्रुप डिस्कस कर रही हूँ। तो टॉप टू बॉटम इनर ग्रुप जब भी हम जाएंगे तो देखो, उसके लिए मैं दो फैमिलीज कंपेयर कर रही हूँ। आपका ग्रुप 3 और आपका ग्रुप 4। तो आपके ग्रुप 3 में यहाँ पे है स्कैंडियम 21, इट्रियम 39, लैंथेनम 57 6 पीरियड, और वहीं पे 14 और एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हैं, सीरियम 58 से लुटेशियम 71 तक। और ग्रुप 4 में यू विल गेट हियर टिटानियम 22, zirconium 40, and here is hafnium 72. तो रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स में क्या हो गया? When I'm going down, the size is increasing. यस मैम। है ना? यहाँ पे क्या होता है देखो, ये मेरी फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है और ये सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज है। So when I'm comparing the atomic sizes of first transition to second transition, where is second transition? My second transition series is about the first with a similar pattern. पैटर्न वो कांस्टेंट वाला, इंक्रीज वाला पैटर्न डी ब्लॉक में सेम रहता है। बट एटॉमिक साइज अगर मैं देखूं तो फर्स्ट ट्रांजिशन से ये सेकेंड ट्रांजिशन है। सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज is having a increased atomic size than first transition, but जैसे ही मैं सेकेंड ट्रांजिशन से थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में जा रही हूँ, तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का ग्राफ मैं ब्लैक कलर से दिखा रही हूँ। तो थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में इट इज दिस वे। का मतलब क्या है? सेकेंड and third transition series, the black is third transition series. क्या देख रहे हो? Can I say from second to third atomic size is increasing? हाँ मैम। हाँ किधर? अरे ब्लू ग्राफ और ब्लैक ग्राफ सेम ड्रॉ किया है मैंने। यस मैम। मतलब सेकेंड ट्रांजिशन और थर्ड ट्रांजिशन में there is no increase in atomic size. यस मैम। ओके, कांस्टेंट। Atomic size remains constant. तो इनर ग्रुप क्या हो रहा है देखो, what is happening in a group? मैं यहाँ पे लिख रही हूँ और रीजन भी समझाऊंगी। From first transition to second transition series, atomic size increases, but from second transition to third transition series, atomic size
remains constant. अभी इसका रीजन समझ लेते हैं. See on the board and understand it with a clarity. तो इसका मतलब कि जो जिरकोनियम की एटॉमिक साइज है और जो हैफनियम की एटॉमिक साइज है दोनों सेम है. क्यों? यस मैं समझा रही हूँ. आपका मैम आपने वो क्या लिखा है 6C लिखा है क्या? थर्ड ट्रांजिशन सीरीज एट atomic size remains same. So zirconium atomic number is 40. Electronic configuration is 5s2 4d2. अगर ये zirconium का न्यूक्लियस है तो उसमें 5 shells है और उसकी atomic size will be the distance from its nucleus to where the electron is present in the 5th shell. But the last electron is entering here in 4d. यस मैम. Is that clear? हाँ मैम. Okay, Yes, अभी ma'am. hafnium को देखो क्या फर्क है. I'm drawing hafnium for you. Hafnium का atomic number हो गया 72. I will represent it with xenon here. It is 6s2. Then comes 4f40 हाँ मैम. and it is 5d2. Yes or no? यस मैम. अभी देखो अगर ये हाफनियम का न्यूक्लियस है तो उसमें 6th शेल है हाँ मैम. और हाफनियम के न्यूक्लियस से जो 6th शेल तक का डिस्टेंस है वो सेम है जिरकोनियम के न्यूक्लियस और 5th शेल तक के डिस्टेंस से. Is what is the whole meaning of atomic size remaining constant? तो जितने डिस्टेंस में जिरकोनियम के 5 शेल्स फिट होते हैं उतने ही डिस्टेंस में हाफनियम के 6 शेल्स फिट हो रहे हैं. यस मैम. क्यों ऐसा होता है ये मैं समझाती हूँ. हाफनियम में आपने देखा कि आपका 5d इधर है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. 4f इधर है जिसमें 14 इलेक्ट्रॉन है. And the whole difference is due to this 14 electrons that are coming in 4f. I have explained you in screening कि your f electrons screens poorly. हाँ मैम. आपका f orbital जो होता है वो highly diffused है. यस मैम. मैम. And it is unable to screen. तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पे आ रहे हैं ना इनका स्क्रीनिंग के तरफ कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है. But when these 14 electrons are coming here, the 14 protons that get added in the nucleus are increasing the nuclear charge tremendously. मतलब मैम जो 4f14 है उसका कोई काम नहीं है मतलब. अब कोई काम नहीं है उसका, वो स्क्रीन कर नहीं पाता. ओके तो स्क्रीन ही नहीं कर रहा. हाँ वो स्क्रीन कर ही नहीं पाता. यहाँ पे नहीं है. हाँ मैम. यहाँ पे आ गया तो यहाँ पे स्क्रीनिंग नहीं हो पा रहा है. बट जब भी 14 इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं तो 14 प्रोटॉन भी तो ऐड होते हैं. हाँ मैम. इलेक्ट्रॉन ऐड होने से स्क्रीनिंग बढ़ना चाहिए जो नहीं बढ़ रहा है. और न्यूक्लियस में प्रोटॉन ऐड होने से इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा जो बढ़ेगा. ओके. वो क्या रहा है ड्यू टू पुअर स्क्रीनिंग ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन effective nuclear charge increases and atomic size decreases. और इस प्रोसेस को इस फिनोमिना को कहते हैं लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन. तो हाफनियम की साइज और बड़ी होनी चाहिए है ना, इससे बड़ी होनी चाहिए बट वो है नहीं. इट इज कॉन्ट्रैक्टेड. इट हैज बिकम स्मॉल due to the poor screening of these 14 electrons.
Due to that, our effective nuclear charge has increased, and due to that, the atomic size of all elements after lanthanide has decreased. मैम पर पुअर स्क्रीनिंग क्यों करता है वो? बेटा ये मैंने लास्ट लेक्चर में यस मैम. तो लास्ट लेक्चर में स्क्रीनिंग सिखाया था. हाँ मैम याद है मैम. हाँ, एक और बार बता सकता हूँ? उसमें मैंने s ऑर्बिटल, p ऑर्बिटल, d ऑर्बिटल और f ऑर्बिटल के स्क्रीनिंग में फर्क बताया था. हाँ मैम याद आ गया वो. वो स्क्रीनिंग पुअर क्यों है? क्योंकि वो ऑर्बिटल शेप जो एटॉमिक स्ट्रक्चर में सिखाया गया आपको, उसमें s ऑर्बिटल कॉम्पैक्ट है, यस p मैम. डिफ्यूज है, d का क्लाउड और डिफ्यूज है और z का क्लाउड और भी डिफ्यूज है. यस मैम समझ में. मैम तो ये लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? व्हाट इज द होल मीनिंग ऑफ लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन? लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन मींस increase in Z effective due to poor screening. yes ma'am. By 4f electrons, thereby decreasing atomic size. मैम आपने वो क्या लिखा मैम? at 6 C remains. Let me complete. Did you understood what is lanthanide contraction? yes ma'am. यस. तो हैफनियम का साइज बढ़ क्यों नहीं पाता? क्योंकि उसमें 14 इलेक्ट्रॉन उसके कॉन्फ़िगरेशन में F में आ गए. अभी सबको पता है कि हैफनियम के आगे जो भी एलिमेंट्स में लिखूंगी सब में ये 14 इलेक्ट्रॉन रहेंगे. हाँ मैम. बट क्या ये 14 इलेक्ट्रॉन लैंथेनम में है? नो मैम. नो मैम. नो मैम नहीं है. नहीं है. तो लैंथेनम में am I going to get this lanthanide contraction? नो मैम. नहीं मिलेगा. मतलब ये जो मैंने ट्रेंड दिया है कि फर्स्ट टू सेकंड साइज इंक्रीजेस एंड सेकंड टू थर्ड साइज रिमेन्स कांस्टेंट, इसका एक्सेप्शन ये ग्रुप है. इसमें as I am going down from scandium to yttrium to lanthanum, there will be increase in atomic size. तो ये रूल का एक्सेप्शन है एक्सेप्ट ग्रुप 3. ग्रुप 3 छोड़ के ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक यही दिखेगा, क्योंकि ग्रुप 4 से ग्रुप 12 तक 4f14 आते रहेगा और लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन ऑब्जर्व होते रहेगा. ओके. बट जो लैंथेनाइड्स के पहले वाला एलिमेंट है उसमें तो 4f14 नहीं है. हाँ मैम. उसमें तो पुअर स्क्रीनिंग नहीं होगा, उसका तो न्यूक्लियर चार्ज उतना नहीं बढ़ेगा. यस मैम. और उसके लिए yttrium से lanthanum is little bigger only. बट zirconium से hafnium बड़ा हो नहीं पाता. ओके मैम. मैम हाँ बोलो बेटा. आपने वो रिमेन्स कांस्टेंट के पहले क्या लिखा है? एटॉमिक साइज. एटॉमिक साइज लिखा है बेटा. ये वाला पार्ट, see I am reading this again. From first transition series to second transition series, atomic size increases, but from second transition to third transition, atomic size remains constant, except group 3. समझ में आया क्या यहाँ तक? यस मैम. कोई
कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नो मैम। कोई डाउट किसी को यहाँ तक? तो ये जो मैंने सिखाया ये हम इन बिटवीन है एटॉमिक साइज के। अभी मुझे और कुछ एक्सेप्शनल चीजें एटॉमिक साइज की, तो ये एक्सेप्शन हो गया ना कि हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं बट एटॉमिक साइज नहीं बढ़ रहा है। हाँ मैम। तो ऐसे और एक्सेप्शंस है जो मुझे समझाने हैं। एटॉमिक साइज के बाद में मुझे आयनिक साइज भी समझाना है। तो ये प्रॉपर्टी मैंने आज स्टार्ट की है एटॉमिक रेडियाई जो पूरी नहीं हुई है। वी आर ongoing this. We will continue this discussion in the next lecture. मैम एग्जाम में आएगा वो एटॉमिक रेडियस? कैसे मतलब कितने बार बोलूं? जो सिखाया वही आएगा बेटा। मुझे याद है मैंने कहाँ तक सिखाया, डोंट वरी। जो नहीं सिखाया वो नहीं आएगा, जो सिखाया वही आएगा। ओके ठीक है। Okay, चलो ma'am. that's it for today. Bye everyone. Thank you, ma'am. Bye, ma'am. थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। बाय मैम। बोलो बेटा। मैम अभी मैंने वो नरेंद्र अवस्थी की बुक ली है, हाँ तो उसमें से कुछ करना है अभी मैम? तेरे पास टाइम है तो कर ले। तेरा बुकलेट हो गया क्या? पूरा मोल कंसेप्ट की बात कर रहा है ना? हाँ मैम। So have you finished everything from the booklet? नहीं मैम, वो लास्ट का जो अटेनर्स और वो सब है वो नहीं हुआ। तो सबसे पहले बुकलेट खत्म करना है। ओके मैम। पहला काम बुकलेट खत्म करना होगा। ओके ठीक है मैम। ओके उसके बाद में एनसीईआरटी जो है ना अपना एनसीईआरटी उसको हाँ, एक बार देखना हाँ है। एनसीईआरटी, हाँ मैम। है ना? पहला Okay, ma'am. प्रायोरिटी बुकलेट, दूसरा बुकलेट एंड असाइनमेंट्स गिवन बाय टीचर। ओके ये पहला ma'am. काम। अगर वो हो गए एनसीईआरटी देख लो। उसके बाद में इतना काम होने के बाद में फिर दूसरे बुक वेंचर करो। ये नीट के लिए कौन सा बुक मतलब फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? क्या पूछ रहा है? नीट के लिए कौन सा बुक फिजिकल केमिस्ट्री के लिए? बेटा एक लिस्ट शेयर की थी ना रेफरेंस बुक की, आपको सबके बुक्स दिए उसमें। आपके ग्रुप में एक लिस्ट शेयर की है। नीट के लिए अलग से रेफरेंस बुक्स दिए हैं, आरटी के लिए अलग से दिए। बेटा प्लीज रीड देम। कोई घाई नहीं करना रेफरेंस बुक लाने की। बुक्स जमा करके क्या करेंगे? जो है वो काम नहीं हुआ है अपना। है ना? इतना काम देके रखा है, मुझे नहीं लगता किसी का हुआ है। तो बुक खरीद के जमा नहीं करना जब तक काम नहीं होता है आपका। हाँ मैम। और सीक्वेंस में पहला बुकलेट, दूसरा असाइनमेंट, फिर एनसीईआरटी। नीट के लिए भी एनसीईआरटी देखना है और आईआईटी के लिए भी देखना है। और इतना बेसिक काम होने के बाद फिर जो भी बुक्स है वो कर लो। ठीक है? ठीक है मैम। चलो बाय एवरीवन, टेक केयर। बाय मैम, थैंक यू मैम। बाय।